There's a question on the screen. If you can find out the answer, find it out. From exam only it is. Those who have joined in, there's a question on the screen. If you can find out the answer, find out, and you can post also. You can message me the answer. On chat, you can message me. Correct. Disha Kusum, correct. Totally correct. Correct, Ethan. Yes, Disha, good afternoon. Yukti, good afternoon. Correct. Vishankar, correct. एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था ना, टेस्ट में वही क्वेश्चन है. Good afternoon, everyone. Let's start. Now, dear student, I've decided that is in every lecture, first 10-15 minutes, I'll be doing some other questions than the topic going on. अभी अपना topic चल रहा है equation. I may do some questions of LR, some questions of sequence and series, maybe some question of set, 2 or 3 questions. Okay, so that you'll remain in touch with that topic. Nothing else. Okay. I'll decide which topic, which questions to discuss. 2-3 questions. Now I'm taking right now from the exam. Sometime I may not take it from the exam. I may take some questions just like that. Now this question which is there on your screen is about blood relation. Find out the relation. Pointing to a photograph. कैसे working आना चाहिए बता रहा हूँ. Okay. Before that, if you know this blood relation, I told you how to go about in blood relation. You have to make different sections. If you remember, one is grandparent section, section, our generation, OG, and अपने
चिल्ड्रन का जनरेशन जैसे सेक्शन करने को बोला. I'll use that and I'll go further. Pointing to a photograph, a lady tells Pramod, lady. So let us call it as, because there will be two ladies if you read it. So let us call it as speaking lady. Speaking lady. The one who is speaking, pointing to a photograph, a lady tells Pramod. So let me take Pramod down. Right now, no relation is given here. Pramod. Okay. I am the only daughter of this lady. I am the only daughter of this lady. Which lady? Lady which is in the photograph. So let me call it as photo lady. So let us photo lady. So there are two ladies here speaking, and the other one is in a photo. Okay. So pointing to a photograph, a lady tells Pramod, that is speaking lady tells Pramod, that is, I am the only daughter of this lady. Which lady? Photo lady की डॉटर है. डी लगता हूं, समझेगा ना, डी से डॉटर. ओके. एंड हर सन उसका नाम नहीं दिया, सो लेट मी से हियर आल्सो एस एंड हियर आल्सो लेट मी राइट सन. So what is the relation between this two, the speaking lady and the son? क्या रिलेशन है? टू वे रिलेशन बोलो. What is the relation between the speaking lady and son? The lady in the photographs का डॉटर है ये, और वो सन है. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? किसके बीच में? स्पीकिंग लेडी एंड sibling. Yes, siblings. Sister brother. Sister on this side, so I'm saying S and oblique B. Sister brother sibling. Sibling correct. Brother sister correct. Okay, that's the relation. Now further what it says, is your maternal uncle. Is your maternal uncle है, किसको बोला जाए? प्रमोद के लिए. प्रमोद के लिए ये जो है मैटरनल अंकल, MU लिखता हूं मैं, मैटरनल अंकल. एम बराबर नहीं है उधर, नीचे वापस लिखता हूं, मैटरनल अंकल. तो प्रमोद का अगर ये मैटरनल अंकल है तो ये कौन होगी प्रमोद की? Who is this lady, speaking lady? How the speaking lady is related to Pramod? Mom, mother. Pramod ki mummy. Then next, how the speaker is related to Pramod's father? Pramod ka father. Speaking lady और इसमें इन दोनों में speaking lady, father, how the speaker, that is the speaking lady, related to Pramod's father? ये कौन है? ये वाइफ है. अगर प्रमोद की मॉम है यानी प्रमोद का फादर है, सो डेफिनेटली इट इज वाइफ. सो आंसर इज वाइफ. क्लियर? जिनको भी डाउट रहेगा, एग्जाम वाला क्वेश्चन था, ऐसा कुछ वर्कआउट होना चाहिए. अभी ये स्पीकिंग लेडी को एग्जाम में ऐसा स्पीकिंग लेडी लिखते बैठेंगे ना तो टाइम जाएगा. तो स्पीकिंग लेडी को आप कैसे लिखेंगे? एग्जाम चालू है, एग्जाम के दौरान आप लिखेंगे स्पीकिंग लेडी को SL लिखो. काफी हो गए. SL फॉर स्पीकिंग लेडी, आपको समझना चाहिए. फोटो लेडी इज PL, फोटो लेडी. प्रमोद को PR. बस हो गया. समथिंग लाइक दिस यू कैन डू. तो एक हो गया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम से ही है. 6 products U, V, W, X, Y, Z are to be placed in display windows of a shop. There are 6 display windows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and one product is to be displayed in one window. Okay. आगे. Moreover, you cannot display immediately. Moreover, you cannot be displayed to the left or immediately to the right of V. Full stop है वहाँ पे. So you should not be displayed immediately to the left or right of U. Okay. Further, W must be displayed immediately to the left of X. To the left of X.
Z cannot be displayed in Windows 6. Now, what is the question? Question says, which of the following product cannot be displayed in window number 1? ये जरा सेंटेंस पढ़ो, इधर से ही आंसर है उसका. इसमें अरेंजमेंट करने का जरूरत नहीं है. There's no need of doing arrangement. बाकी सब पास है इधर. This sentence is important. Read this sentence and you will get the answer. कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं. ये सेंटेंस रीड करो. क्या बोला है? W must be displayed immediately to the left of X. So which of the following product cannot be displayed in window number 1? अगर विंडो नंबर 1 ये है, ये 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा and 6 रहेगा. So which product should not be displayed in window? W must be displayed to the immediate left of X. अगर X को मैं इधर डिस्प्ले करूं तो इसके लेफ्ट में, ये साइड में W को डिस्प्ले करना पड़ेगा. बट क्या यहाँ पे विंडो है? नहीं है. तो X cannot be displayed in first window. That's the answer. Without. बाकी सब बकवास है इधर. जिसको अंडरलाइन किया उतना ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट था. क्लियर? So no arrangement is required. Question arrangement पूछा नहीं है. Who is in the first window, who is in the second window, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा. अगर आप करने भी जाओगे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है इधर. क्लियर? Is it clear? W must be displayed immediately to the left of X. अगर X को आपने फर्स्ट विंडो में डिस्प्ले किया तो W को किधर डिस्प्ले करेंगे? X cannot be displayed in the first window. X can be displayed in the second window, third window, fourth window, fifth window, sixth window, but it cannot be displayed in the first window because उसके लेफ्ट में W को डिस्प्ले करना है. Any doubt? Any doubt? नेक्स्ट, ये भी आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन था, जीपी वाला क्वेश्चन है. ये किया था आप लोगों ने, छोड़ दिया था, जो भी होगा मैं भी कर रहा हूं. देखो, इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, क्या दिया हमको? थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज, क्या पूछा है? सम नहीं पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है. प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन. क्या दिया है आपको? थर्ड टर्म इन जीपी. जीपी के टर्म्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टर्म्स इन जीपी? द फर्स्ट टर्म, टर्म्स इन जीपी, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? ए रहेगा. व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? ए आर रेस टू 1 और ए आर. नेक्स्ट टर्म विल बी, थर्ड टर्म विल बी ए आर स्क्वायर. ये 4 है. थर्ड टर्म इज दिस. ओके, देन नेक्स्ट टर्म 3 हो गया, a r raised to 3, a r raised to 4 will be the fifth term. कोई डाउट? यहां तक समझा? जीपीए. ये फर्स्ट पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. हमको क्या चाहिए अभी? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. सो लेट अस डू इट हियर. a multiplied by ar multiplied by ar square multiplied by
AR raised to 3 multiplied by AR raised to 4. That is equal to A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5. तो कैन आई राइट हियर A raised to 5 एंड R raised to कितना हो जाएगा? मैथ स्टूडेंट्स, R raised to कितना हो जाएगा? पावर कितना आएगा? R raised to पावर ऑफ R, A का पावर 5, R का पावर 10. ऑल ऑफ यू एग्री? कैसे? इधर R raised to 1 है, ये दिया नहीं, बट R raised to 1, then 2 3 and 4 मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड करना पड़ेगा. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. करेक्ट? नाउ कैन आई राइट, हमको क्या मालूम है अभी? वी नो AR स्क्वायर. कैन आई पुट समथिंग इन AR स्क्वायर? इसको कैन आई राइट लाइक दिस? AR square the whole raised to 5. Can I write like this? Answer is yes. Now आगे क्या है? We know value of AR square. AR square की वैल्यू कितनी है? AR square की वैल्यू 4 है. 4 raised to 5 is the answer. Clear? कितने जन का बराबर आया था ये? आया था बराबर? ओके, वेरी गुड. दिमाग वाला क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ कर डाला क्योंकि इसमें कुछ अपना एक्सेप्ट जीपी का वो टर्म्स के अलावा और कुछ नहीं लगता है, बाकी मैथ्स चाहिए. चलो जिनका नहीं आया था स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो. 3 सम किए मैंने आज अलग से. तो जो अपना टॉपिक है एवरी डे हियर ऑनवर्ड, जब तक लेक्चर चलेगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग. रिवीजन चलो होगा तो सब टॉपिक बोल दूंगा, बट उसके साथ भी और कुछ क्वेश्चन करूंगा. 2-3 क्वेश्चंस विल बी आउट ऑफ आवर नॉर्मल वे, जो भी कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल जब रिवीजन चालू करूंगा तो रिवीजन में बोलूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट जिस दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने का होगा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट 3-4 क्वेश्चन विल बी हियर एंड देयर, बाकी के रहेंगे. आपको उसके साथ भी टच में रहना पड़ेगा. चलो ये हो गया. नाउ बैक टू आवर इक्वेशंस. एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the standard format of quadratic equation. So you have to convert your equation, given equation, into standard form, and that standard form is ax square plus bx plus c. Okay. Next point, quadratic equation is having 2 roots. Normally they are called as alpha and beta. Okay. नेक्स्ट पॉइंट था वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला याद है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दैट इज द फॉर्मूला. फिर था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज सी अपॉन ए. फिर पॉइंट था इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. फिर raised to 3 वाला था, alpha raised to 3 plus beta raised to 3 is equal to alpha plus beta raised to 3 minus 3 alpha beta in bracket alpha plus beta. माइनस वाला याद रखने की जरूरत नहीं, ये आता है तो माइनस वाला आएगा. माइनस वाला बहुत रेयरली लगेगा आपको. नेक्स्ट, सबसे ज्यादा स्क्वायर वाला लगेगा आपको, बहुत बार लगेगा. एक सेकेंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. दिस पॉइंट and this point is more
मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट चाहिए इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट वो रेसिप्रोकल का पॉइंट था. इफ अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल, अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1, therefore c is equal to a हो जाएगा. फिर रूट्स इक्वल है बट ऑपोजिट साइन, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, इक्वल बट हैविंग नेगेटिव साइन, देन क्या हो जाएगा तुम्हारा b इक्वल टू 0 हो जाएगा. नेक्स्ट था वो फिर एड्रियन ने पूछा भी था इरेशनल का. सो इफ वन रूट इज m प्लस अंडर द रूट n, तो अनदर वन विल बी m माइनस अंडर द रूट n. ये दोस्तों आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा मिलेगा इजी क्वेश्चन में, one root of the quadratic equation, let's say one root of the quadratic equation is 4 plus under the root 2, एक रूट दिया है, what is the another root, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है तो इजी है. another root क्या आएगा 4 minus under the, ये अगर एक रूट है दूसरा रूट डेफिनेटली ये है, या एक रूट है माइनस वाला एक रूट है तो ये रूट दूसरा है. दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग. ओके, एंड देन इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में नेक्स्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स. व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a प्लस प्रोडक्ट x एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज c अपॉन a इज इक्वल टू 0. फिर डेल्टा वाला बात हुआ था, डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इक्वल टू 0 है तो इफ इट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. Delta is equal to 0, then roots are real and equal. Next point is greater than 0. If greater than 0, roots are real but unequal. Real and unequal. Equal to 0, real and equal. Greater than 0, real and unequal. Next are greater than or equal to 0, just real. ऊपर से दो में से लिया है, ये दोनों पहले दोनों पॉइंट में क्या कॉमन था, रियल, तो रियल. फिर था लेस देन 0, लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी. लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड रैशनल. परफेक्ट स्क्वायर मींस 16 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो दे आर रियल एंड रैशनल. ओके, अगर ऑप्शन में रियल एंड रैशनल नहीं दिया होगा तो यू हैव टू से रियल एंड अनइक्वल, बिकॉज़ व्हाट आर द वैल्यूज वी आर सेइंग, दे आर ग्रेटर देन 0. 16, व्हाट इज 16? 16 एक्चुअली ग्रेटर देन 0 भी है ना, 16 ग्रेटर देन 0 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है. तो अगर 16 आंसर आ रहा है किसका, इसका आंसर 16 आ रहा है. व्हाट इज परफेक्ट आंसर? परफेक्ट आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर, रियल एंड रैशनल. तो ये ऑप्शन में नहीं है रियल एंड रैशनल, तो क्या करेंगे फिर आप, रियल एंड रैशनल नहीं तो 16 इज ग्रेटर देन 0 तो विल से रियल एंड अनइक्वल. अगर वो भी नहीं है ऑप्शन में यू विल जस्ट से रियल बिकॉज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 16 आता है तो फर्स्ट आंसर ये आना चाहिए. 16 है, 25 है तो ये आंसर आना चाहिए. ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो ये आना चाहिए सेकंड. ये भी नहीं है तो सर, ये भी नहीं है तो नन ऑफ दिस आएगा. फिर 16 ना, 16 is what? Greater than 0. It is greater than equal to also 0. It is perfect square also. So first क्या आना चाहिए, first preference real and rational. फिर एग्जामिन किए थे रूट और एक क्वेश्चन हुआ था अपना, और मैंने कुछ गलती भी किया था, फिर आप लोगों ने बोला माइनस है सर, माइनस m है तो माइनस माइनस 2 स्क्वायर, ये वाला. नेक्स्ट, इफ 2 raised to, ये भी ट्रायल एंड एरर से करना है, यू कैन ट्राई आउट. इफ मैं भी सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेके करूंगा. इधर इक्वेशन लेके रखता हूं, क्या इक्वेशन दिया है, 2 raised to 2x plus 3, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है. माइनस 3 स्क्वायर, ये डॉट मींस इनटू है, हां इनटू 2 raised to x, let me put here into 2 raised to x plus 1 is equal to, let us take first option 0 and 1, दोनों से चेक करना है. पहले 0 से चेक करेंगे. put x as 0, अगर x को 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x को 0 डाल दिया 2 raised to 3 minus 3 square which is 9 into 2 raised to 0, anything raised to 0 is 1.
plus 1 is equal to 0. 2 raised to 3 is 8. 9 into 1 is 9 plus 1 is equal to this. 8 minus 9 minus 1 plus 1 कितना हो गया? 0 हो गया. 0 is equal to 0. Satisfying. Tick. Now take 1 and check. 0 check करके हो गया. 0 is satisfying. Let us check with 1. 1 से क्या हो जाएगा? 2 raised to 2 into 1 is 2 plus 3 5. 2 raised to 5, correct? Minus 3 square into 2 raised to 1, which is 2, plus 1 is equal to 0. 2 raised to 5 is 32. Minus 9 into 2. 3 square is 9, and 2 raised to